Hey guys, and welcome back to my channel. This is your reading for the month of March. Now we are doing the reading for the remaining 6 signs, Aries through Virgo. Okay, if you are Aries ascendant or moon, you can watch this reading. Okay, let's see how the energies are going to be. Silence. Wow, what's going on here? Silence, postponement and creativity. Aries, I think a lot of your focus and concentration is within instead of being outside. Okay, you are looking in a very meditative state, I would say. Some of you are actually doing meditation, calming your energy, healing yourself, maybe in the first half of the month, because there could be a lot of things going on in your head. Okay, and you want to get rid of that, and how you're going to get rid of that is through going within, through feeling that peace, that calmness within yourself. Okay, some of you, I feel you can even like go to some retreat center, okay, and stay there for some time because you want to feel that calming energy. Okay, there can be some postponements as well that may happen in the month of March, or this could be just that you are feeling lazy right now and you don't feel like doing anything. तो थोड़ा सा फर्स्ट हाफ मुझे लग रहा है बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि थोड़ी कामिंग एनर्जी पे आप जाना चाहते हो. यू डोंट वांट टू हसल टू मच, विच इज़ वेरी ऑपोजिट ऑफ योर नेचर. यू आर naturally, Aries are the kind of people who want to hustle, who want to make the effort, who want to go out and be there. But this month is more looking like you want to be at peace, you want to calm yourself, you want to rest. Okay, and there is some kind of creativity I'm feeling within you. You're looking very creative. Maybe some of you are actually going back to your older selves, trying to entertain the child within you, trying to do something that you have not done from a very long time. So ऐसा भी मुझे लग रहा है, हो सकता है. ठीक है, let's look at your general future. Aries, general future. Aries, what's in their general future? Five of Wands, Three of Swords. So this is the kind of energy which is wanting you to go within and take a break from everything and everyone. There could be some unnecessary drama and argument that you may have in your life. Okay, maybe in the start of the month, or let's say first half of the month. It's like it looks totally unnecessary. There could be some drama queen or dramatic people, over dramatic people in your life that you may be dealing with. Okay, there could also be some betrayals happening with you, Aries. Okay, or maybe you feel betrayed in some situation. You feel like, okay, isko aisa nahi hona tha, aisa hona tha, and clearly things are not going as per what you had planned or what you had thought of, and that makes you feel like you're being betrayed by somebody. Okay, we have the Strength card here. That's very Aries sort of energy, because you don't want to, despite what the situation is, you always want to come back, you always want to put the efforts, you want to show up. Okay, so you are trying really hard to not lose it within you, to keep up the momentum. Okay, but काफ़ी इमोशनल आप मुझे लग रहे हो यहाँ पे, like quite emotional sort of. You may be even trying to take some decisions in your life that has a lot to do with emotions. मतलब we are not talking about some we are not talking about some practical decision here कि कौन से करियर में जाना है, क्या कितना फाइनेंस डालना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है. आई थिंक मार्च में यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ इमोशनल सिचुएशन. ठीक है, और उसमें आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है जो आपको ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट लग रही है. एंड दिस इज़ द रीज़न कि आप थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट पे जाना चाहते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक अ मिस, राइट. लेट्स सी योर करियर, Aries. Let's see your career. Let's see your career. Oops, Aries, seriously, what the hell is going on? We have the Death card here. Some kind of transformative period you're going on. There is so much confusion when it comes to your career as well. Okay,
Maybe some of you are, leaving your careers behind, leaving your job, business behind, and then you're also confused whether you should do that or you should not do that. There is some kind of situation in your workplace where you feel very captivated. Okay, you feel like कि मैं बहुत बंध गया हूँ, I'm very bound by this situation, and you're not liking it. You're not liking this codependency, this binding that you have been experiencing in your career or you will experience in your career. Somewhere deep down you also want some kind of freedom. अभी मुझे इसका एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे समटाइम्स jobs become like compulsion. Okay, you feel no motivation to go to work, but you have to go to work because you have got your EMIs and bills to pay, right? So some of you may actually face that kind of situation where you no longer feel motivated towards the job you're doing, but you have to keep on doing that because you have bills to pay, right? तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है, बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ टॉक्सिक सिचुएशन यहाँ पे है. इट कुड बी अ टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक कॉलीग, और समवन हु इज ट्राइंग टू, लेट्स से, control you when it comes to your work. Maybe someone is trying to control even the creativity you are trying to bring into the work, right? जैसे मान लो कि आप कोई एक आइडिया पिच इन कर रहे हो, थिंकिंग कि ये अच्छा आइडिया हो सकता है, बट द अदर पर्सन इज लाइक नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही करना है. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन फील हो रहा है अपने वर्क प्लेस में. ऑल्दो एज द मंथ एंड्स थिंग्स विल डेफिनेटली टेक सम गुड टर्न्स फॉर यू. ओके, पर ये महीना थोड़ा हैवी होने वाला है आपके लिए व्हेन इट कम्स टू वर्क. लेट्स लुक एट योर लव लाइफ इन मार्च, एरीज. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ अच्छा चल रहा है गाइज. 5 ऑफ पेंटिकल्स, लव लाइफ एरीज. यार इतना क्या बुरा हो गया यार. आई थिंक दिस इज वाई आई गॉट दिस कार्ड ऑफ साइलेंस, पहला कार्ड जो एनर्जी थी, बिकॉज आई थिंक बहुत ड्रामा चल रहा है. सम सिचुएशन इज नॉट गोइंग दैट ग्रेट एंड नाउ यू आर सॉर्ट ऑफ टायर्ड एंड यू आर लाइक हटो, आई डोंट वांट टू डील विद एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू बी अलोन एंड स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ एंड calm my energies. We have the 9 of swords, the 5 of pentacles, again that betrayal kind of energy, not wanting to open up, not wanting to communicate with anyone. Okay, 10 of cups, queen of pentacles. Although I feel that some of you may actually get into a good relationship. Some of you may even get married as well, or you may get marriage proposals. There may be some engagements and all that may happen. Okay, but provided you come out of this back and forth situation, I genuinely feel कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है who's been very inconsistent and very back and forth. Whenever this person wants to come, they come. Whenever they want to leave, they leave without any explanations, right? So इस टाइप की अगर कोई चीज़ है जिससे आप डील कर रहे हो, so you better make some final decision about this, because this is how it's not gonna work. Okay, let me tell you this very clearly. अब आपको जो भी अरेंजमेंट लेने हैं अपने रिलेशनशिप में विद दिस काइंड ऑफ पर्सन, आप ले लो, बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट? लेट्स सी व्हाट रोमांस एंजल्स हैव टू से फॉर यू एरीज. रोमांस एंजल्स, एरीज. अनरिक्विटेड लव, ये देखो पहले ही आ गया. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay, so if you are dealing with this kind of person, Knight of Swords, जो कभी भी आता है कभी भी जाता है, then it's better you just leave that person. और देखो, oh my God, look at the card separation, right? Time apart from your partner is on the horizon. So if you are dealing with an unrequited love, where there is not enough attraction, there's not enough chemistry between you both, there's not enough understanding between you both, and this person is just taking you for granted, coming and going whenever they want to, I think it's time that you separate yourself, you free yourself from this person. Okay, and then you can find your 10 of cups with the Queen of Pentacles, right? So you have to make some final decision. I guess it's better you do it ASAP, so that you no longer waste your time and energy with the similar kind of patterns. Aries, what do we have for Aries for the month of March? Strength. Strength comes from many sources. Staying strong brings confidence, conviction, and a balanced body, mind, and soul. Spirit has its own unique and beautiful way of replenishing your soul with strength on a continual basis. You're never really alone, as we are always with you. So here your guides, masters, teachers are asking you to be
strong, okay, because as I told you, your reading has been quite tough. So what you need is a lot of strength. Somewhere, you know, they are looking over you and they know you. They know the fact कि अभी जो situation चल रही है इसमें आपको strength की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, right? So they are asking you to stay strong and they are always watching over you. Okay. So this is your reading, Aries. I know this was quite heavy, but I hope you feel better and I'll see you in the next read. Bye. Hi Taurus, welcome back to your monthly predictions. This is your prediction for the month of March. If you are Taurus ascendant or Taurus moon, you can watch this reading. Let's see what's in there for you, Taurus. We have the Sorrow card and we have the card of transformation. Any big change that comes into your life, it comes with some sadness, right? For example, you're changing your house, so you're excited for the house. That is a big change, but then you also have to leave your old neighbors, your old friends from this locality because you're moving to a new locality, right? So this is the card of Tower. Basically, if you compare it with tarot, this is like a tower moment. Some big transformation is happening within you, around you, and a period before that may feel a little, you know, heavy, little sad, but just so you know that it's important, right? It's important because you have to grow. You can't be stagnant. You can't be at one place and then learn everything. If you want to learn, you want to grow, you have to continue to move, continue to evolve, continue to change, right? So इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है. थोड़ी सैडनेस है, but then things will change for good. Okay, let's have your general future, Taurus. What's your general future? Taurus का मुझे general future. We have the Emperor. Okay, what else? We have the Nine of Wands. We have the Nine of Wands. We have the Two of Wands. And what else? Give me one more. We have the Eight of Wands. Some old traumas are getting triggered, Taurus, okay? And it could be because of some masculine figure, boss figure, father figure. I guess अगर आपके पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ ट्रोमा है, ओके, तो वो मार्च में रीसर्फेस हो सकते हैं. आप आप हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ या स्पेशली आपके फादर फिगर के साथ आपका थोड़ा डिस्प्यूट भी हो जाए कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने वैसा किया, वगैरह वगैरह. इस तरह की मुझे सिचुएशन फील हो रही है. प्लस आई फील लाइक कि आपकी लाइफ में कोई एक important, एक influential masculine figure है, okay, who's been quite rough with you and you're not very happy about it. Now again, this could be your husband if you're a female. If you're a male, this could be your father, this could be your sibling, this could be a boss, friend, whatever, right? But this is someone who is influential, who holds good power, good impact on your life, or their behavior, their treatment towards you has not been nice and you have some trauma when it comes to this person, okay? कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जिसको लेके आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे. यू मे ट्राई टू एनालाइज, यू मे ट्राई टू फोरसी कि आगे क्या हो सकता है, आगे 6 महीने, आगे 1 साल. तो थोड़ा सा आप मुझे एक प्लानिंग वाले उसमें दिख रहे हो, ठीक है? देयर कुड बी सिचुएशंस इन योर लाइफ, जैसे होता है ना कि अगर मैं इस इंसान से शादी करती हूँ, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि अगर मैं इस इंसान से शादी करती हूँ तो आगे आने वाला 6 महीना इसके साथ कैसा रहेगा, 1 साल कैसा रहेगा, आगे 10 साल कैसा रहेगा, सो आई एम सीइंग कि आप उस तरह से कुछ प्लानिंग, दूर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो. अगेन ये करियर के लिए हो सकता है, पर्सनल प्लानिंग हो सकती है, राइट? सम ऑफ यू आई ऑल्सो सी दैट यू आर वांटिंग टू ट्रैवल, मे बी यू आर वांटिंग टू चेंज द सिटी, चेंज द कंट्री, कम्यूट, और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि मेरा वीज़ा कैसे होगा, मेरा इमिग्रेशन कैसे होगा, या मैं सिटी चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे कौन सी सिटी में जाना चाहिए. तो इस तरह के आपके कुछ प्लान्स मुझे लग रहा है जो बन सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, लेट्स हैव योर करियर, टॉरस, टॉरस, टॉरस. Oh my God. Oh. आई टोल्ड यू ना कि ये जो कार्ड होता है अगर हम टैरो से कंपेयर करेंगे तो दिस इज अ टावर कार्ड. एंड लुक, वी हैव द टावर कार्ड coming out for you, right? I guess this is the big transformation I was talking about in your energy as well. So we have the Three of Pentacles, the Tower, the Three of Wands, and the Hierophant. Okay.
समथिंग दैट यू थॉट वॉज मूविंग ऑन। अगेन करियर में चीज़ें अच्छी जा रही थी, बट सडनली कुछ एक डिप, कुछ एक सडन चेंजेस आपके करियर में आएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको मूव भी करना पड़ जाए। ओके, नाउ आई एम गेसिंग कि ऐसा होता है जब प्रॉबेबली आप जॉब स्विच करने का सोचते हो, या आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र। गेसिंग कि ऐसा होता है जब आप जॉब स्विच करने का सोचते हो, सडनली जॉब में कुछ ऐसा हो गया कि आपको नाउ नो लॉन्गर वांट टू बी हियर, और मे बी होता है कभी कभी आपको कंपनी बोलती है कि ठीक है हम ले ऑफ कर रहे हैं, यू रिज़ाइन या वट एवर, बट कुछ एक बड़ा शिफ्ट मुझे आपके करियर में आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके, नाउ this could be a department change, this could be a location change, this could be like literally city change, country change, but there is some big transformation that's coming in your career, जिसकी वजह से कोई change आ सकता है। And again, as I told you, that change may feel upsetting, that change may feel like, oh why me, but then it's for good। ओके, लुक एट दिस। सो टॉरस, मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके करियर में या आपके फाइनेंस में कुछ भी अगर बुरा हो रहा है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड मत हो, क्रिप मत करो, बिकॉज उसके बाद का जो पीरियड है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं गॉड, अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट गॉड और यूनिवर्स इज टेकिंग मी, इज गिविंग मी अ सेटबैक, ओके, तो आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा कि वो सेटबैक आपकी लाइफ में क्यों ज़रूरी था। ओके, all right, let's have your romance, let's see your love life। Let's see your love life। Let's see your love life। The 5 of Pentacles, the Page of Pentacles। Okay, एक तो कोई पास्ट रिटर्न भी हो सकता है, some ex may try to contact you, reach out to you। Okay, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म एक्स है, मतलब जिससे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, एंड हो गया 5 महीना, 6 महीना, 3 महीना, एंड देन सडनली दिस पर्सन जस्ट पॉप्स आउट ऑफ नोवेयर, टेक्स्ट यू, और कॉल्स यू, व्हाटएवर। यहाँ पे मुझे एक नया इंसान भी आता हुआ दिख रहा है। सी, इन केस आप सिंगल हो या सिंगल नहीं भी हो, बट देन यू डोंट फील लाइक staying in your previous relationship and you want to move on, I have a feeling that there can be a new person that may enter in your life। बहुत ही water energy मुझे यहाँ पे लिख रही है, water energy, air energy। Now this person is like you'll connect very well with this person। somewhere आपका intellect, आपकी thought process and whatever you like to talk, even they like to talk the same thing, right? So intellectual level पे आप काफ़ी connect करोगे इस इंसान से। और ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है टॉरस, this is a person who is very emotional। okay, they may not spill all their emotions but they are very emotional। so कुछ लोगों के लिए एक्स रिटर्न भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए दोनों भी हो सकता है, राइट? कि नया पर्सन भी आ गया और पुराना वाला भी आ गया, एंड नाउ यू आर लाइक कि अरे अब मैं किसके पास जाऊं, किससे बात करूं। ओके, लेट्स चेक रोमांस एंजल्स टॉरस के लिए क्या है, क्या है, हमें प्लीज बताइए। रिलीज योर एक्स। ओ माई गॉड, आई वॉज अबाउट टू से दैट कि अगर आपका पुराना बंदा भी आता है जो काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं हुई है, और नया बंदा आता है, तो आप नए वाले को ज़्यादा चांस देना, बिकॉज पुराना वाला क्या है कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट हील्ड एंड इफ़ दे माइट जस्ट रिपीट द सेम पैटर्न्स, राइट? एंड नए बंदे के साथ क्या है, यू मे ऑल्सो जस्ट गेट इन टू अ वेरी मिराकुलस सिचुएशन। वो कुड बी जस्ट टू गुड फॉर यू, राइट? ही कुड बी सो गुड टू यू, तो यू नेवर नो। पर पुराने वाले का तो आपको पता है कि ओके इस पर्सन ने मुझे ये ट्रॉमा दिया, मेरे साथ ये किया, वगैरह वगैरह। एनीवे, सो योर कार्ड्स आर ऑल्सो कन्फर्मिंग दैट यू शुड रिलीज योर एक्स। ओके, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। एक तो पहली चीज़ तो वीनस का ट्रांजिट भी आपके 12th हाउस में ही हो रहा है, राइट? 12th हाउस में गिव सम सेपरेशंस एज वेल। अदरवाइज अगर आपका एक्स से रिटर्न नहीं भी हो रहा है, राइट, बट यू आर समबडी हु स्टिल स्टक ऑन योर एक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप किसी के साथ मिलने नहीं जा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, किसी और को आप चांस ही नहीं दे रहे हो। इन केस यू आर डूइंग दैट, ओके, एटलीस्ट वो मत करो,
ओके, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू मीट विद पीपल. और अगर आप किसी के साथ प्यार में हो, देन योर एंजल्स आर सेइंग गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. इफ़ यू फील कि दिस इज़ द गुड पर्सन एंड यू नो आई विल बी हैप्पी विद दिस पर्सन, या फिर मुझे इसको या मैं इस पर्सन को पसंद करती हूँ, तो एटलीस्ट आप जाके अपने प्यार को एक्सप्रेस करो. डोंट बी लाइक कि अरे ये खुद करेगा, मैं क्यों जाऊँ वगैरह वगैरह. नहीं, इफ़ यू फील जेन्युइन कनेक्शन विद समवन, एटलीस्ट यू शुड गो एंड एक्सप्रेस देम. बाकी एक्सेप्ट करना ना करना वो उनके ऊपर है, राइट. Soul solitude. Your soul needs attention. There are moments when it's important to get away, not just from the noise of the world, but to find a place where your soul can experience peace and quiet, a place for soul solitude. This is a time to pause, a time to reflect, and a time for you. So basically they are asking you to not hurry anything, alright. और I guess आपकी एनर्जी में भी हमने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखा था. So your guides are saying that it's time that you be a little in solitude and then try to find answers. Okay, don't hurry anything on this. So Taurus, this was your reading. I hope you enjoyed it, and if you did, do subscribe to the channel, and I'll see you in the next read. Bye. Hi Gemini, welcome back to my channel. This is your reading for the month of March. Let's see if you're a Gemini ascendant or Gemini moon. Let's see आपके लिए क्या कहना चाहते हैं cards, projections. Okay, no, I'll not take this because yeah, I guess जुड़े हुए थे. One more Gemini. Projections and understanding. Okay, start of the month, Gemini may feel like you're not able to see the right faces of people. You're not able to understand the situation very well. थोड़ा सा delusional phase आ सकता है आपकी life में. Okay, because आप चीज़ों को as it is judge नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, हमेशा यू नो ऐसा हो रहा है कि यू आर सीइंग द सिचुएशन नॉट फॉर व्हाट इट इज़, बट यू हैव योर ओन लेंसेज ऑन योर आइज़ एंड आप चीज़ों को वैसे ही देख रहे हो जैसे आप देखना चाहते हो. सो मतलब आप चीज़ों को न्यूट्रलिटी के साथ ना देख के बल्कि एक परसेप्शन के साथ देख रहे हो. ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको चीज़ें डिल्यूशनल हो सकती हैं, आपको राइट डिसीजन मेकिंग करने में दिक्कत आ सकती है. बट एज द मंथ विल गो ऑन चीज़ें ठीक हो जाएंगी. ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको स्टार्ट ऑफ द मंथ इनिशियल फर्स्ट हाफ में अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, राइट, तो आप खुद से मत करो. टेक एडवाइस फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सन. Gemini ascendant, Gemini moon. King of Cups. बड़े इमोशनल दिख रहे हो आप Gemini, क्या हो गया है? Ace of Cups. Oh, okay. For some of you, there is actually new love. There is actually new love coming for you. Someone is going to propose to you and express their feelings. Otherwise, you know, this could be you as well. You wanting to express your feelings for someone. आई थिंक जेमिनाई पास्ट में जो भी हुआ ना, आप उससे उभरना चाहते हो. अब ये पास्ट कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये कोई बुरा करियर हो सकता है, ये कोई बुरी रिलेशनशिप हो सकती है. जो भी आपका पास्ट रहा है ना, आई गेस आप उससे उभरना चाहते हो. ठीक है, यू डोंट वांट टू चेज एनीथिंग. यू आर सॉर्ट ऑफ सरेंडरिंग एवरीथिंग दैट्स हैपेंड टू यू इन द पास्ट. ओके, आई गेस पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको लेके आपको अभी भी काफ़ी रिग्रेट होता है जेमिनाई. ओके, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको रात में नींद नहीं आती. मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी रिग्रेट, काफ़ी रिमोर्स देती है. बट एट द सेम टाइम नाउ यू आर लाइक कि ओके, आई कैन नॉट बी स्टक ऑन दीज थिंग्स. आई कैन नॉट जस्ट मेक माई लाइफ मिजरेबल. आई हैव टू मूव ऑन. आई हैव टू गो आउट. आई हैव टू बी यू नो, आई डिज़र्व लव टू, आई डिज़र्व अफेक्शन. तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको फील हो रही हैं. ऑलराइट, लेट्स सी योर करियर. Let's see your career, Gemini. Career is going good. Okay. Oh wow. Some of you getting new opportunities as well. New job, new business, something new. Okay. And some of you may get into a kind of job, or let's say get a kind of opportunity which may feel very homely. Okay. कुछ लोगों को एक्चुअली मुझे लग रहा है वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है. और ऐसा हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिला एंड देन यू एक्चुअली वेंट होम टू सी योर फैमिली बिकॉज यू आर लाइक कि मैं वहाँ से काम कर लूँगा या कर लूँगी, व्हाटएवर, राइट. सो ऐसी सिचुएशन लग रही है. बट ओवरऑल काम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है. कुछ नया कर रहे हो, नया सीख रहे हो, पैशन है,
क्रिएटिविटी है, एक्साइटमेंट है टुवर्ड्स योर जॉब। ओके, कुछ लोगों के लिए तो एक्चुअली नई नई कंपनी हो सकती है, कोई नया करियर हो सकता है, कोई एक साइड हसल हो सकता है जो आपने स्टार्ट किया है कि चलो जॉब भी करेंगे एंड लेट्स डू दिस ऑल्सो साइड बाय साइड, राइट? ओके, जेमिनाई रोमांस, शो मी देयर लव लाइफ। जेमिनाई मार्च में 4 ऑफ कप्स, 1 मोर। ओके, होल्ड ऑन गाइस, मेरा थोड़ा सा कार्ड्स नीचे गिर गया है। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, देखो देख के तो लग रहा है कि फैमिली कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा अभी आपको मोह नहीं है। ओके, फील्स लाइक दैट यू डोंट वांट टू सेटल डाउन राइट नाउ, और मे बी यू आर स्केर्ड टू सेटल डाउन, लेट्स से इन एन अरेंज मैरिज सेटअप, और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपकी फैमिली आके आपको रेकमेंड कर रही है कि इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, राइट? सो इट्स नॉट दैट यू डोंट वांट कमिटमेंट, यू डू, बट देन यू वांट इट इन योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट your friend or your friend of friend or your mutual friend may try to just confess some things to you, like कोई ऐसा इंसान जिसको आप फ्रेंड मानते हो बट देन ही और शी कम्स एंड टेल्स यू दैट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड दैट दे वांट टू मैरी यू। ओके, सो उस तरह का भी मुझे लग रहा है फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स के सेटअप में कोई हो सकता है जो आपसे शादी वादी करना चाहता है एंड दे जस्ट कम एंड कन्फेसेस दैट टू यू। अदरवाइज एक टिपिकल अरेंज मैरिज सेटअप है उसमें तो आप मुझे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो। यू वॉन्ट द न्यू चैप्टर्स टू अनफोल्ड इन योर लाइफ, लेकिन इन योर ओन टर्म्स, एज आई सेड। जेमिनाई, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको लाइफ पार्टनर चाहिए, बट एक दोस्त जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। आपको वो टिपिकल हस्बैंड या टिपिकल वाइफ नहीं चाहिए। यू वांट कि मेरा जो पार्टनर हो वो पहले मेरा फ्रेंड हो। ओके, सो आप अपनी लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा तो सुखी नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आपकी एक टिपिकल अरेंज मैरिज टाइप ऑफ सिचुएशन चल रही है, देन आई डोंट थिंक यू लुक वेरी हैप्पी टू मी, एटलीस्ट ऑन द कार्ड्स। ओके, let's see romance, Gemini, romance angels, and we have stay optimistic about your love life। so देखो वेडिंग के लिए तो मैंने बोला था कुछ लोगों की टिपिकल अरेंज मैरिज या इस तरह की शादी वादी की बात चल सकती है। अदरवाइज यू नो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई वेडिंग अटेंड करो, है ना। Passion, your love life definitely needs a lot of passion here, and you have to stay optimistic about your love life। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फिल्टर्स आपने लगा रखे हैं जेमिनाई, अगर लगा रखे हैं तो डोंट डू दैट। ओके, एंड या फिर आप अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा तो बेड़ा गर्क ही होना है एंड आई एम नॉट गोना गेट अ गुड पार्टनर, डोंट थिंक लाइक दैट। ओके, स्टे लिटिल पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ, सब अच्छा होगा। लेट्स सी जेमिनाई, वी हैव एनिमल किंगडम। आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है लोगों के लिए। Animal of all types are extraordinary creatures and miraculous gifts to us. They have been our spiritual companions since the dawn of time. This moment they have lessons to share with us, with you, that will open your heart and soul. So, point is कि you should be closer to animals. Okay? Animals right now have a very healing energy, और आप जितना उनके आसपास रहोगे, उनसे कनेक्ट करोगे, उनको खाना खिलाओगे या उनके साथ रहोगे, राइट, उतना आपकी एक एनर्जेटिक हीलिंग हो जाएगी एंड उतना आपके ऑरा के लिए, आपकी कॉस्मिक बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक है, लेट्स सी द पर्सन यू मे बी डीलिंग विद। आई एम सीइंग अ वर्गो हियर, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, Taurus, Gemini. These are the zodiac signs that you could be dealing with, but it doesn't matter because it's a collective reading, तो उतना precise नहीं आ सकता सबके लिए, right? So Gemini, this is your reading for the month of March. I hope you enjoyed it and I'll see you in the next read. Bye. Hi Cancers, welcome back to my channel. This is your reading for the month of March. If you are a Cancer ascendant or moon, do watch this reading. Alright, let's say we have maturity and we have ordinariness. Okay, wow, that's a different card finally. So a lot of maturity has come in you, Cancers. I feel that you are
emotionally at least you're very mature. Okay. And because if cancer is actually a water sign, so you are very emotional, of course, and sometimes people also fool you because you're emotional. Okay. So cancers, if you have been an emotional fool for a very long time, I think you're getting some kind of maturity. You're making healthy boundaries. पता नहीं मुझे ये word आ रहा है healthy boundaries, because if you look at this picture, face के बाहर एक गोला आपको दिख रहा है, right? So somewhere you're drawing those boundaries with people कि ठीक है, I'm there to heal you and help you, but at the same time you also cannot take advantage of me. Okay. And the second card is just talking about existence. You're just existing, you're enjoying every small thing of life. You're not cribbing, you're not crying, you're just present in the moment. Life is ordinary, but you're happy, you're at peace. Okay, this actually denotes a lot of peace in your life. All right, Cancer. Let's have a general future for March. Cancer general future मुझे बताइए. There could be some Cancer. सी कैंसर, फर्स्ट थिंग इज़ फाइनेंस इश्यूज. ओके, आई फील कि आप थोड़ा सा पैसों को लेके डिस्टर्ब रह सकते हो. मनी से रिलेटेड कुछ इनसिक्योरिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं. आई फील लाइक कि आपके पैसे कहीं छुप सकते हैं या कहीं खो सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि यू डोंट लूज़ योर मनी. ओके, स्पेशली डोंट गिव योर मनी टू अ मैस्कुलिन फिगर. अगर कोई आके आपसे मांगे, स्पेशली अगर कोई लड़का है, तो आप कोशिश करो कि उसे पैसे मत दो, बिकॉज देन चांसेस आर कि वो पैसे वापस नहीं आएंगे. आई एम ऑल्सो सेंसिंग लाइक यू आर डीलिंग विद समवन हु कुड बी मैरिड. ऐसा लग रहा है कि हु कुड बी मैरिड बट कुड बी अनमैरिड एज वेल, बट यू आर डीलिंग विद सम मैन, मैस्कुलिन फिगर, जो कि आपकी लाइफ में बहुत इनसिक्योरिटीज पैदा कर रहा है. ओके, सो मे बी यू आर डीलिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आपको एक कंसिस्टेंसी, एक सेफ स्टेबल रिलेशनशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से भी आप काफ़ी परेशान रहते हो. आपको अपने फ्यूचर का डर रहता है कि यार पता नहीं, मतलब ये कनेक्शन कहाँ जाएगा, या इसके साथ मेरा क्या फ्यूचर होगा, कैसे होगा, कब होगा कि नहीं होगा. सो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं कैंसर्स. ओके, आई फील लाइक आपके मन में ना चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके बहुत गुस्सा आपके मन में भरा हुआ है. ठीक है, मे बी किसी ने आपका एडवांटेज लिया हो, या आपका पैसा लेके भागा हो, या आपके साथ कुछ गलत किया हो, जो भी रीज़न रहा है, बट कुछ चीज़ों को लेके आपके अंदर मुझे बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है. एंड यू आर जस्ट लाइक कि भगवान से इसका कर्मा कब मिलेगा, कब जो है ये इंसान सबक सीखेगा, कब मेरा रिवेंज आप लोगे. ठीक है, थोड़ी सी उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. मतलब यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, बट यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्सिंग द यूनिवर्स कि जल्दी इसको अपना कर्मा मिले तो मैं चैन से बैठूं. ओके, दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग. ऑलराइट, लेट्स सी योर करियर. कैंसर्स कैसा रहने वाला है. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स. अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं आपके पास. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है. यहाँ पे भी कोई मैस्कुलिन फिगर है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है. बॉस, कॉलीग, कोई ऐसा हो सकता है, काम चोरी कर सकता है, या आपके खिलाफ कुछ बोल सकता है, आपके पीछे गॉसिप कर सकता है. तो कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जो भी अचीव कर रहे हो ना, उससे थोड़ा सा एक सेंस ऑफ जेलसी है, बिकॉज उसे वो एक कंपटीशन की तरह लग सकता है ऑफिस में. यू एंड नाउ दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, बट आपके ऑफिस में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलता है, जिसको ऐसा लगता है कि आपको जो मिल रहा है वो आपसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन सारा जो अटेंशन है, सारा फुटेज है, सब कुछ वो आप लेके जा रहे हो. एंड इस वजह से उस पर्सन को आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऑफिस लाइफ वैसे तो ठीक है, करियर इज़ गोइंग गुड, पैसे वैसे भी ठीक हैं, लेकिन क्या है कि आपसे जलने वाले लोग हैं वहाँ पे, जो आपसे थोड़ा सा जेलस है. Let's have your love life. We have the Empress, the Eight of Pentacles. Some of you may conceive in case you're married and you're planning to.
I feel like Cancer, see, you want to of course put all the efforts, because till now आपकी जो भी love life रही है उसमें आपने बहुत effort डाले हैं, राइट. यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो बोले कि नहीं नहीं मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए बट आई डोंट वांट टू मेक एनी एफर्ट्स. ओके, ऐसा नहीं है. लेकिन अभी आपका जो एक रवैया बोल दो या एक अप्रोच जो है वो लव एंड रिलेशनशिप को लेके ऐसा हो गया है कि आई एम रेडी टू पुट द एफर्ट बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी द एफर्ट. इफ यू डोंट वॉन्ट पुट एफर्ट्स टूवर्ड्स मी देन आई डोंट वॉन्ट यू. ओके, सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग हियर कैंसर, कि आपको सारे एफर्ट डालने हैं लेकिन उससे पहले आपको चाहिए, आपको देखना है सामने वाला इंसान आपके लिए कितना कर सकता है. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जैसे मुझे आपका दिखा ना कि आप हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करते हुए आप मुझे दिखे. सो ये वो महीना है जब आप सिर्फ देने में बिलीव नहीं करोगे, यू विल ऑल्सो स्टार्ट आस्किंग कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो. मैं तो तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, मैंने किया भी है, बट तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, राइट. उस तरह के आपके क्वेश्चन मुझे लव लाइफ में दिख रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो. बट दिस प्रैक्टिकलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, सम ऑफ यू मे कनेक्ट विद अ न्यू पर्सन. अगर आपकी लाइफ में मार्च में कोई नया इंसान आ रहा है, जस्ट नो कि ये जो बंदा है थोड़ा सा फ्लर्टेशियस हो सकता है बट दिस इज अ मैच्योर मैन. अगर अभी तक आपने बड़े ही इमेच्योर काइंड ऑफ लोगों से डील किया है तो मार्च वो महीना है जब आपकी लाइफ में कोई मैच्योर इंसान एंटर कर सकता है. सर प्लीज, दिस इज फॉर कैंसर. ये देखो, फ्री योरसेल्फ. It's time to take back control of your life. Look at that. Right? So any ex, anybody who's just trying to manipulate you, control you, okay? Or, not being nice to you, giving you a lot of insecurities, it's time that you take back your energy from that person, which I feel most of you are already doing that, but in case you're not, this is your sign, okay? Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Look at that. So you have to bring that passion back into your love life, okay? Get into the game, Cancers. Get into the game. All right, let's look at your guidance. Cancers, March. Hope. Your loved ones in the spirit world know when to reach out if they see you are at a low point. Whether you are caught up in a difficult situation or struggling with someone specific in your life, there is always hope. सो कैंसर्स, आपको होप नहीं छोड़नी है, ठीक है. बिलीव नहीं छोड़ना है. जो फेथ है आपके अंदर, ठीक है, उसको आपको हमेशा कायम रखना है, चाहे वो किसी भी सेक्टर ऑफ लाइफ में हो. आपका वो फेथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है. एंड योर गाइज आर सेइंग कि दे आर वॉचिंग ओवर यू, और जब उन्हें लगेगा कि आपको जेन्युइनली मदद की जरूरत है तब वो कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी के थ्रू आपको मदद भिजवा देंगे, ठीक है. लेकिन आपको अपनी होप नहीं छोड़नी. आपके अंदर जो फेथ है, जो एक लाइट आपके अंदर है, वो आपको उसको कभी बुझने नहीं देना है, ठीक है. ऑलराइट, लेट्स सी द पर्सन यू मे बी डीलिंग विद इज कैंसर. Okay, you may be dealing with another Cancer, Libra, Taurus, Leo, Aries. Okay, these are the major signs I'm seeing, but there could be more signs as well. As a general reading, right? So Cancer, I hope you enjoyed your reading. If you did, subscribe to my channel and I'll see you in the next read. Bye. Hi Leos, and welcome back to my channel. This is your reading for the month of March. If you are a Leo ascendant and moon, you can watch this reading, okay? Leo. Wow, we have harmony and we have maturity. You're looking very peaceful, Leo. You are in harmony with yourself. You are like focusing on your mind, body and soul. You're focusing on your own business. You're not going out and dealing with any kind of shit or anybody else's shit. You are like, you're minding your own business, and that's why you're at peace, okay? You're also getting a lot of maturity. You're making healthy boundaries. Exact same card मुझे कैंसर के लिए आया था. So some of you could be dealing with a Cancerian as well, or could be dealing with a water sign, or could be dealing with someone who's like very giving in nature, right? So this is you, Leo. You usually Leos are very emotional people. I know that, and they tend to not show their emotions, but ये भी फैक्ट है कि लियोज देखने में जितने स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट लगते हैं वो उतने एक्चुअली होते नहीं हैं. वंस पीपल नो दिस थिंग अबाउट यू दैट यू आर वेरी इमोशनल इन योर हार्ट, दे ऑल्सो समटाइम्स टेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, जिसकी वजह से आई थिंक मार्च में दिस इज वॉट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ. यू आर क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड यू सो दैट पीपल आर नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, सो दैट ओनली दोज पीपल कम इन हु जेन्युइनली नीड योर हेल्प, ओके?
All right, let's see. Let's have your general future, Leo. Ace of Wands, Ace of Swords, Three of Swords, and the Star. Okay. See, this is what I was talking about. You are in harmony. See, देखो, Leos. See, in the month of March, there may be some over dramatic situations in your life. People around you may create some chaos, maybe in your family, maybe outside your family, right? Maybe in your neighborhood. So, somewhere, people are just going to create some nuisance and it will take away your peace for a while. But again, I don't think that this is going to bring any long lasting impact on you because you seem to heal, right? So मिड ऑफ द मंथ में थोड़े से chaotic सिचुएशन हो सकती है, बट माई गॉड, 2 aces and 1 star, that's a lot of peace. Exactly, harmony. And this card gives me a very similar vibe. Okay, there is of course wish fulfillment. Okay, as the month ends, I think something is going to manifest for you. Some wish is going to come true. But not just that, you may be traveling, you may be connecting with new people. You're coming up with new ideas. You're implementing. You are doing something that you really love and enjoy doing. Okay, and at the same time, you're traveling as well. You're being very peaceful. You are taking good care of your finances. ओके तो मतलब ओवरऑल एक बहुत ही पीसफुल अच्छी एनर्जी है. बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं. करियर भी हो सकता है, अदरवाइज और किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, राइट? लेट्स सी योर करियर, लियो. ओ माय गॉड, दिस इज अगेन अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट. सो करियर में भी कुछ बहुत अच्छा हो सकता है. यू मे गेट सपोर्टेड. ओ माय गॉड, लियो. Oh god, I'm not used to of seeing so many good cards in one reading, so I'm just okay, nazar mat lagao Nishi. Leo's career. Wow, oh my god. Whew. तो टेम्परेचर बढ़ गया रूम का भाई. First of all, for a career reading, I got lot of pentacles, which is so good, which is so good, क्योंकि करियर की रीडिंग में पेंटिकल्स आने चाहिए. ठीक है, दैट गिव्स यू स्टेबिलिटी, दैट गिव्स यू मनी. करियर में भी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है. मे बी आपके कुछ अपने पर्सनल गोल्स एंड टारगेट्स हो सकते हैं कि यार मैं मार्च तक ऐसा कर लूँगा, मैं मई तक ऐसा कर लूँगा, मैं इतनी एज में इतना पैसा सेव कर लूँगा, या जो भी आपके गोल है कि मुझे इस कंपनी में जाना है, मैं ये कंपनी क्रैक करके रहूँगा. सो आपके जो भी कोई गोल है करियर से रिलेटेड, ठीक है, उसको आप अचीव करते हुए दिख रहे हो. जो भी आपके पर्सनल गोल हो सकते हैं, करियर में भी आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है. फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिल रहा है अपनी फैमिली से, अपनी मदर फिगर से, या अपनी गर्लफ्रेंड से, वाइफ से, जिससे भी किसी कोई फीमेल फिगर है जिससे आपको काफ़ी सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है. ओके, अदर देन दैट यू आर ऑल्सो डूइंग अमेजिंग ग्रेट एट योर वर्क. सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी. Let's see your love life, Leo. What's in your love life? What do we have for Leo's love life? What do we have for Leo's love life? Okay, so here comes all the bad cards. Hangman, Queen of Swords, Justice, and I have one more. ये देखो, ये तो लियो आपका खुद का कार्ड है, राइट? ओके, आई गेस हर चीज़ में अच्छा हो रहा है. लव लाइफ इज समथिंग दैट यू आर अ बिट स्ट्रगलिंग विद. ओके, बट देन अगेन यू आर नॉट हैंगिंग ऑन टू इट अ लॉट. यहाँ पे हैंगमैन आया है ना, विच मीन्स यू आर सरेंडरिंग द सिचुएशन इन दिस मंथ, एंड आई थिंक दैट इज वाई यू आर एट पीस, लियो. बिकॉज कुछ भी सिचुएशन हो, आप उसको चेज नहीं करना चाहते. यू आर टायर्ड ऑफ चेजिंग. यू आर रेडी टू पुट द एफर्ट, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट रेडी टू चेज. ओके, एनी आउटकम और एनी पर्सन. यू आर लाइक यार जो होगा देखा जाएगा. अगर if someone has to come to me, they'll come to me. I'll put the efforts, but if they want to leave, let them leave. I'm not going to chase anyone. I'm not going to force anyone. I'm not going to ask anyone to come and stay with me, right? So that is the kind of energy I'm seeing within you. जो भी है चीज़ें आपकी लव लाइफ में, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, और एक स्ट्रेंथ रख रहे हो. आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लूज आउट नहीं करना चाहते हैं. ओके, जो कि आई गेस लियो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेट है कि वो चाहे अंदर से जैसा भी फील करें, वो बाहर से उसे बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं. बिकॉज दे आर द लियोज, राइट? दे आर द किंग्स. सो how can they just shed their tears in front of people and look vulnerable? Although I don't say कि ये गलत है.
और neither I say कि ये सही है, whatever works for you, but Leos are like that's what I'm saying. थोड़ा सा लियो मुझे लगता है आपके साथ कोई इंसान है या जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हो सकते हैं. थोड़ा टेम्परामेंट इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अगेन मुझे आप में उतना टेम्पर नहीं दिख रहा है, जबकि टेक्निकली आप में टेम्पर होता है, ओके, बट मुझे आपके पार्टनर में ज़्यादा टेम्पर दिख रहा है. बट स्टिल अगर आप में भी टेम्पर है तो भी थोड़ा सा अपनी टोन का, अपने वर्ड्स का ध्यान रखें, ठीक है. चाहे जितना भी झगड़ा हो, झगड़े में भी आप अपनी डिग्निटी को लूज मत करिए. मतलब डोंट गो सो लो व्हेन यू आर फाइटिंग कि आपको खुद बाद में शर्म आए. एंड आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग कि आप ऐसा नहीं करोगे, बट इन केस अगर आप ऐसा कर देते हो कि आप गुस्से में किसी को बहुत गंदा गंदा बोल देते हो और बाद में आपको ही शर्म आती है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया, ठीक है. सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल देयर. फॉर लियो, व्हाट डू वी हैव? Engagement. Okay, so some of you may get engaged or may get married or may get a proposal. यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड आया है. सो यू एंड योर पर्सन, ओके, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों को एक रिट्रीट की ज़रूरत है. एक यू गाइज नीड अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ. तो हो सकता है थोड़ा सा छुट्टी लेके दोनों लोग मिलके साथ में कहीं ट्रैवल करने जाओ, किसी अच्छी जगह पे रुको, बी क्लोजर टू नेचर सो दैट इट ऑल्सो हील्स योर लव लाइफ. क्योंकि रिट्रीट की ज़रूरत तो आपको मुझे दिख रही है, ठीक है. लेट्स सी. Serenity, the most important relationship you can have is with yourself. This is a time to honor, nurture and love yourself more by seeking out and removing any negative feeling and emotions that are left over from yesterday. Don't let past issues and resentments interfere with your serenity today. So जो भी past issues हैं उसको आपको वहीं छोड़ देना है. मतलब लीव द पास्ट इन द पास्ट, ओके. इट शुड नॉट हैम्पर विद योर करंट पीस ऑफ माइंड, ओके. कोई भी चीज़ है जो आपके पास को ट्रिगर कर रही है उसको थोड़ा सा यू नीड टू कीप स्पेस फ्रॉम दैट. चाहे वो कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, कोई प्लेस है या कोई पर्सन है, बट कोई भी चीज़ है जो आपको आपके पास्ट ट्रोमास को ट्रिगर कर रही है, ठीक है. यू नीड टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम दैट. Alright Leo, this is your reading. I hope you enjoyed it. If you did, let me know in the comments and I'll see you in the next read. Bye. Hi Virgo, welcome back to my channel. This is your reading for the month of March. If you are a Virgo ascendant, Virgo moon, this is your reading. Okay, let's see Virgos के लिए क्या है. We have totality and we have fighting. अरे बाप रे. I just feel कि Virgos, you don't crave for anything. Okay, you're feeling very complete within yourself. Or totality can also mean that you are very close to completing your targets. ओके, कुछ है जो कंप्लीशन पे आ रहा है. समथिंग इज़ लाइक कमिंग फुल सर्कल एंड आई थिंक यू वुड नो बिकॉज आपकी लाइफ है तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ है जो कंप्लीशन पे आ रही है. अगेन ये कोई लव लाइफ का कोई चैप्टर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका मतलब हो गया सब कुछ एंड नाउ यू आर लाइक इट्स डन, इट्स डन, इट्स ख़त्म, राइट. हमारा जितना आपस में जो कर्मा था वो अब सेटल हो गया. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन. है जो कंप्लीट हो रहा है, फिनिश लाइन पे आ रहा है. आपका जो कर्मा था, जो लेसन्स थे आपके उस चीज़ के साथ वो कंप्लीट हो रहे हैं. नाउ यू आर लाइक कि चलो ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सेकंड हाफ में मुझे आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है दैट टेम्परामेंट इश्यूज हो सकते हैं. यू मे फील लाइक फाइटिंग और लाइक समवन इज फाइटिंग विद यू एंड यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ. ऐसा कुछ हो सकता है वर्गो, ठीक है. सो थोड़ा सा अपने टेम्पर पे ध्यान देना, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ. Alright, let's see a general future. Let's see a general future for Virgo. No, that's a lot of card. So we have the Judgment card here, okay, which is talk about self-reflection, taking some important decisions in your life, okay, wanting second chances into something. Oh God, देखो Virgo's thinking बहुत चल रही है. There's a lot of thinking. I feel like you're backtracking your life, you're seeing कि क्या situation कैसी रही है और आपने क्या क्या सीखा है. So again, जैसे मैंने बोला ना आपको कि कुछ है, something which is coming to full circle, right? So you are kind of analyzing some situation, some person, some connection, something, and you are seeing कि okay, past में क्या क्या हुआ, what all I learned, what all I failed in, what all I could have done better, what all. So बहुत सारे मन में questions आपके चल रहे हैं. Okay, and you are into that complete self reflection.
Some of you may not even socialize with a lot of people during this moment, during this period, because you want to do some self reflection, you want to take some important decisions in your life, और आपको लगता है कि उसके लिए मुझे थोड़ा सा आइसोलेशन, थोड़ा सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। कुछ हैं आपके डीप ट्रोमास, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। एंड ओ माई गॉड, वॉज इट यू हु आई सेड कि कोई भी चीज़ है जो आपके ट्रोमा को ट्रिगर करती है, उससे आप डिस्टेंस करो। नो, आई डिडंट टेल यू दिस, आई वाज टेलिंग दिस टू लियोज। ओके, कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो आपके ट्रोमा को ट्रिगर करती है, आपको उससे अलग होना है। फाइनेंशियली लाइफ स्टेबल है, बट कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है इसमें, ठीक है। देयर इज सम डीप वोंडिंग विद इन यू वर्गो दैट यू हैव टू डील विद, ओके। एंड आई रियली फील कि आपके दिल से या आपके ट्रोमास, जो भी पास्ट ट्रोमास रहे हैं या चाइल्डहुड ट्रोमास रहे हैं, उसमें से कुछ है जो बाहर आएगा, ठीक है। अब वो कैसे बाहर आएगा, ऑफ कोर्स उस ट्रोमा को कोई सिचुएशन है जो ट्रिगर करेगी, तभी वो चीज़ बाहर आएगी, राइट, अदरवाइज नहीं आएगी। तो कुछ एक ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं, एंड देखना ये रहेगा कि आप उसको कैसे डील कर पाते हो, ठीक है। बिकॉज अगर हीलिंग नहीं हुई है, जो कि मुझे लग रहा है नहीं हुई है, अगर हीलिंग नहीं हुई है तो फिर आप उसी पैटर्न में रिएक्ट करोगे जैसे आपने पहले किया था, राइट। लेट्स सी योर करियर, लेट्स सी योर करियर वर्गोस, लेट्स सी योर करियर। ये देखो वर्ल्ड कार्ड, मैंने बोला था ना कि जब भी मैं ये कार्ड को देखती हूँ, सो आई गेट वेरी वर्ल्ड कार्ड एनर्जी, सो आई गॉट दिस फाइनली। देखो करियर में आप डेफिनेटली मेहनत तो कर रहे हो, बिकॉज वर्गोज एज फार एज आई नो दे आर परफेक्शनिस्ट, राइट। दे लाइक एवरीथिंग एग्जैक्टली द वे दे वांट, मतलब उनको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज, थोड़ी सी भी चीज़ें इधर से उधर पसंद नहीं है। तो काम बहुत अच्छे से चल रहा है, मेहनत कर रहे हो, लेकिन मनी से बहुत ऑब्सेस हो रहे हो। नाउ अगेन मे बी यू आर एंटिसिपेटिंग मोर एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर, इसलिए आप ऑब्सेस हो रहे हो। या फिर हो सकता है कि यू नो आपका आपके पास पैसे कम हैं इन जनरल, इसलिए आप ऑब्सेस हो रहे हो। रीज़न चाहे जो भी हो, बट आपको थोड़ा सा एक फाइनेंशियली आप ऑब्सेस हो रहे हो, लोगों को पैसा नहीं देना चाह रहे हो, चैरिटी नहीं करना चाह रहे हो, लोगों की मदद करने से कतरा रहे हो, स्पेशली अगर वो फाइनेंशियल हेल्प है तो, ओके। नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अच्छी दिख रही है, बट पता नहीं क्यों एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, आइदर आप अपॉर्चुनिटी को ठीक से जज नहीं कर पा रहे हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो 2 ऑफर लेटर आए, और एक में क्या है सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, एक में सैलरी थोड़ी कम है, एंड यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर दैट ज़्यादा वाला सैलरी विदाउट इवन एनालाइजिंग कि वो कंपनी कैसी है, वहाँ मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, कंपनी का कल्चर कैसा रहेगा, ओके। सो ये अगर कुछ मिस्टेक अगर आप करने का सोच रहे हो तो मत करना, ओके। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जिस कंपनी का पैसा कम है वो कंपनी ज़्यादा अच्छी है। आई एम सेइंग कि whenever you are taking a big decision in your career ना, especially in the month of March, you take advice, take help, okay। किसी एक पॉइंट को आगे रख के केवल उसमें अंधों की तरह मत चले जाना, केवल उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना। You take advice, you take your time and then you take any decision. यहाँ पे कुछ inheritance भी मुझे लग रहा है, like you may get some money from your you know parents or I don't know ancestral property, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Let's see. Let's see your love life, Virgo. Love life में भी judgment है, तो वो judgment love life में था इसका मतलब, हाँ। One more. किसी सिचुएशन में मुझे लग रहा है आपको सेकंड चांस मिल सकता है, आइदर ये रिलेशनशिप है, आइदर ये मैरिज है, बट seems like you can get a second chance. I also feel like some of you are really thinking about marriage. तो मतलब यू आर लाइक माइंड मेकअप कर रहे हो कि चलो यार अब शादी कर लेते हैं, अब सेटल हो जाते हैं, तो इस तरह का कुछ एक माइंड मेकअप आपका चल रहा है। आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एंटरिंग इन योर लाइफ। तो या तो ये ऑलरेडी है या ये होने वाली है। स्पेशली अगर आप लड़के हैं तो आपको बहुत अच्छा शादी का प्रपोजल आ सकता है फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल मैग्नेटिक वुमेन। अगर आप लड़की हैं तभी भी अगेन आपकी शादी के लिए एक अच्छा प्रपोजल आपको आ सकता है, बट प्रोवाइडेड आपको अपने पास्ट के जो ट्रोमास हैं उससे बाहर हटकर सोचना है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि समवन इज बीइंग नाइस टू यू, ओके, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि व्हाई इज दिस पर्सन बीइंग नाइस टू मी,
okay, because maybe you're not used to of niceness, you have not experienced, maybe you have not seen niceness in your life, and then you start judging that person, and then you start being a little repulsive, okay, not communicating very well. So अगर ऐसा कुछ है तो आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है, ओके. इफ समवन इज बीइंग नाइस टू यू, यू बी नाइस टू देम, यू डोंट जज देम, यू डोंट रिपेल देम. Of course you have to be cautious if you're a female especially, or if you're a male also, doesn't matter, you have to be cautious about your safety, but don't be over judgmental. कोई है आपकी लाइफ में जिसने इतना ज़्यादा मतलब आपको परेशान कर दिया है कि now you are in that self reflection कि यार मतलब I don't think I deserve this person, or I don't think I deserve to be with this person, so it's better I get married to someone nice. Okay, so इस तरह का एक स्टोरी बनता हुआ दिख रहा है. अगेन यू नो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं. वी आर डूइंग अ जनरल रीडिंग, बट दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज आई एम सीइंग. ओके, वर्गो. रिकन्सिलेशन, सो आप में से कुछ का अपने पास्ट लवर के साथ रिकन्साइल भी हो सकता है. एंड देन वी हैव पैशन हियर. ओके, सो you need to bring more passion in your love life, Virgo. All right, let's see your guidance for, let's see what is the guidance for you. So we have forgiveness. Holding on to resentment and anger is preventing or even suffocating your spiritual growth. Resentment is one of the strongest and most damaging of human emotions. The act of forgiveness in its own right is equally incredibly powerful, and it has the capacity to heal and transform, right? So you know, Virgo, if in case if you are holding on to any resentment, any anger against anyone, and it's just choking you, suffocating you, then don't do that. Try to release this energy of resentment, because it will hamper in your spiritual growth. Now understand your spiritual journey like this. You're taking a train journey. Imagine you have to reach to station D, but you're keeping a lot of your luggage in station B. So of course you won't be able to reach station D until you finish and take all your luggage from station B, right? So that's what your spiritual journey is. When you hold on to resentment, anger, when you have a lot of strong desires for something, you kind of delay your journey, right? अब जब तक ये चीज़ यहाँ नहीं सिमटेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो सिमिलरली अगर आपको भी कोई रिसेंटमेंट है, कोई एंगर है किसी से बहुत ज़्यादा, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स. जब सही समय आएगा तो चीज़ें अपने आप सेटल आउट हो जाएंगी. Karma will play its own part. Okay, so you have to forgive and move on. Alright Virgo, this was your reading. I hope you enjoyed it. If you did, do subscribe to the channel, and I'll see you in the next read. Bye.